Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we will be having our 15th lecture, and that is about creditors and credit rating agencies. But before we start our today's lecture, let's have a quick review about our last topic, and that was shareholders and shareholders activism. In last lecture we discussed that shareholders are basically the most innocent and helpless victims when any sort of scandals occur in the corporation. There are basically two different categories of investors that we discussed. The first one is individual investor, and the other one is basically called institutional investor. Individual investor basically is a person who has a very huge capital in his pocket, so he just goes straight to the company and can invest directly. But we have also discussed कि suppose if उसके पास पैसा है, लेकिन sometimes there are certain cases कि कंपनी का 1% शेयर्स लेने के लिए you have to spend a lot. So on the other sides we have numerous examples about the individual investors like Bill Gates, like Steve Jobs, etc., etc. Institutional investors basically is an investor who doesn't have enough capital to invest in the corporation. So basically वो क्या करता है कि फिर वो normally we call it the mutual funds or the pension funds. ऐसी organizations जहाँ पर sometimes thousands or millions of छोटे-छोटे investors मिलके invest करते हैं, और वही organization on your behalf वो further company में invest करता है. So institutional investors are more effective and influential than the individual investors. We have studied why institutional investors are basically more influential than the individual investors. Obviously that is because of the large stake in the corporations, because institutional investors के पास पैसा ज़्यादा होता है, because it comprises of thousands or millions of different small investors. So वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है. So institutional investors की जो accumulated capital या जो एक मुश्ता पैसा होता है, उसके साथ जो individual investor होता है वो इतना compete नहीं कर सकता. But we have seen some cases कि जहाँ पर individual investors के पास भी बहुत पैसा होता है और वो कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं. So institutional investors is influential because of the huge investment in the corporation. So we discussed some benefits of mutual funds, that why it is beneficial for an individual investor to invest in mutual funds rather than just go straight in the company and invest there. The first benefit of mutual funds is the advantage of professional investment management. कि mutual fund में you have a team, कि एक मैनेजमेंट टीम होती है जिनके पास प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होती है, कि वो दे कैन सी द मार्केट इन द बेटर वे देन यू एज एन स्मॉल इन्वेस्टर. Second benefit is the funds managers have real access and information. कि फंड्स मैनेजर के पास, जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं उनके पास रियल एक्सेस होता है और इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द मार्केट. Then a diversification in the investment. Another benefit of mutual funds
इसके म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट जितना भी कैपिटल इकट्ठा होता है वो इकट्ठा एक ही सेक्टर में नहीं लगाते हैं. दे प्रॉब्ली गो फॉर मोर अदर diverse sectors to invest your money. So low cost and high quality investing. Another benefit of mutual fund is that it's very low cost, because you can start your business, you can start your investment with a very low capital, low investment. And it's convenience and flexible. Convenience in a sense कि सपोज इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, सो आप करते क्या है, यू नीड टू हैव अ फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, अबाउट द कंपनी, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ लेमैन. एक आम बंदे के लिए कंपनी और मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन लेना और फिर उसमें इन्वेस्ट करना, दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल है. सो वाई इट इज़ कन्वीनियंट इन द म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज कि म्यूचुअल फंड्स में व्हेन यू गो टू द म्यूचुअल फंड्स, सो ये जितनी भी हेडेक्स हैं, दैट इज गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, गेटिंग द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये सारी हेडेक्स मैनेजमेंट की जो एक्सपर्ट्स हैं या जो एनालिस्ट हैं इन म्यूचुअल फंड्स के, वो करते हैं. सो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर लिक्विड एंड इजी टू विड्रॉ. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं एंड इफ़ यू नीड योर मनी बैक, सो इट्स वेरी इजी टू गेट इट बैक बाय गिविंग अ सिंपल एप्लीकेशन, एंड यू विल गेट योर मनी विद इन 3, 5 और 7 days. लेकिन इफ़ यू हैव वंस इन्वेस्टेड योर मनी इन द मार्केट और इन द कंपनी डायरेक्टली, तो फिर या तो एक तो ये सोल्यूशन है कि आप अपने शेयर्स दूसरे बंदे को बेच दें. So that is one of the source that how you can get your money back. लेकिन अगर आपने कंपनी से ही पैसे ले रहे हैं, सो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है to get back your money from the company directly. So costs of mutual funds, basically there are some hidden fee charges. Some charges are on yearly basis, कि हर साल आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस म्यूचुअल फंड काटती हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल, फ्रॉम द इन्वेस्टर. जो इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उससे वो ईयरली बेसिस पे कुछ ना कुछ कमीशन या फीस वो काटते हैं. सेकंड, अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं म्यूचुअल फंड में, इफ़ यू आर बाइंग सम शेयर्स और इफ़ यू आर सेलिंग सम शेयर्स, सो इवन देन आपसे कुछ ना कुछ फीस या कमीशन म्यूचुअल फंड काटती है. बिसाइड्स दिस देयर आर सम अदर small reductions from your pocket. So shareholders activism is basically, as we have seen कि shareholder is चूंकि वो he or she is behind the scene, so उसको इतना मालूम नहीं होता कि कंपनी किस तरफ जा रही है, नंबर 1. नंबर 2, कंपनी की सारी मैनेजमेंट वो दूसरे बंदों के पास होती है. सो वो अपना रोल किस तरह प्ले कर सकता है, हाउ ही कैन बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ द कंपनी. वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल. सो द गोल ऑफ एक्टिविस्ट रेंजेस फ्रॉम फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल मैटर्स. वी हैव डिस्कस्ड कि जो एक्चुअल एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स होते हैं वो किस तरह फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफियर कर सकते हैं. देन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म, वी स्टडीड कि प्रीवियसली काफ़ी अर्सा पहले इंडिविजुअल को कंपनी की मीटिंग्स में किसी किस्म की क्वेश्चन या आंसर सेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया. और अब अगर आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं तो कंपनी आपको इनवाइट करती है. दे जस्ट सिंपली इनवाइट यू थ्रू द करस्पॉन्डिंग्स कि आप आके कंपनी के मीटिंग में बैठें
and put your suggestions or opinions. Monitoring by large shareholders. We have discussed key is why it is beneficial for small firms to have large shareholders in the beginning, because अगर large shareholders होंगे तो वो company अगर कोई अच्छा decision लेती है management, so they can influence or they can support the management decision. लेकिन जब कंपनी एक दफ़ा मेच्योर हो जाती है, सो फिर दे नॉर्मली डोंट रिक्वायर टू हैव लार्ज शेयर होल्डर्स. एंड वी डिस्कस्ड कि नॉर्मली द ट्रेंड इज़ इन द वेस्ट के वेस्ट में कंपनीज में लार्ज शेयर होल्डर्स को इतना इनकरेज नहीं किया जाता, just to reduce the monopoly of that particular shareholders in the company's management. Then institutional shareholders, and already we discussed a lot. Does institution shareholders activism work? Another question is कि what if अगर जो shareholder वो activist हो भी जाता है तो क्या उसके बाद company की performance ठीक हो जाती है? And we have discussed a lot कि there is not a direct relationship between the activist shareholder and the firm performance. There are certain cases जिसमें we have seen कि shareholders की activism के बाद firms की performance अच्छी हुई है, but there are many numerous cases in which we can see कि shareholders की activism के बाद भी firm की performance उतनी अच्छी नहीं रहती. So potentially roadblocks to effective shareholders. कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो shareholders को activist होने से रोकती हैं. So limited desire to be activist. The first point is कि shareholders खुद active होने की कोशिश नहीं करते. Many other options for investment. और दूसरी ऑप्शंस होती है इन्वेस्टमेंट के लिए. सपोज अगर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड, अगर वो देखती है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अगर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, सो दे विल सिंपली स्विच टू सम अदर कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट. सो मैनेजमेंट डोंट हायर पेंशन फंड्स एडवाइजर्स हु आर ट्रबल मेकर्स फॉर मैनेजमेंट. So private public funds normally go with management activists. Law restrict them to become a major owner of the firm. As I've just said कि west में normally companies में किसी भी shareholder को whether if it's the individual shareholder or whether if it's the institutional shareholder, उसको कंपनी की मेजर ऑनरशिप नहीं दी जाती है, जस्ट टू डिस्करेज द मोनोपोली ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी. एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लॉन्ग पेपर वर्क इंक्लूडेड टू गेट द लॉन्ग ऑनरशिप ऑफ द कंपनी और टू बिकम द एक्टिविस्ट पार्ट ऑफ द कंपनी. So see, these are the basically the roadblocks that discourage the shareholders to become activists. Then in international perspective, we have seen that what is the situation in the West and what is the situation in the East basically. So today's lecture outline is that basically we will introduce that what is basically meant by credit rating agencies. We have seen that there are two basic persons who take care about the company. The first one is obviously the stockholder or the shareholder. We can use different words for them. Another person who actually take care of the firm, that is the creditors. So creditors are the persons or the institutions or even the government जो कंपनी में जो कंपनी को पैसे देते हैं, जो कंपनी को लोन देते हैं.
सो ऑब्वियसली जब कंपनी उनसे पैसा लेगी, इवन इफ इट्स द इंडिविजुअल पर्सन और द इंस्टीट्यूशन या बैंक्स, तो ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कंपनीज की एक्टिविटीज़ को, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मॉनिटर करें, बिकॉज दे हैव a large money with the firm's management. Then we will discuss two types of lenders. Basically there are two types of lenders. First one is commercial banks. Banks companies को पैसे देती हैं, and individual. And there is another way that the company they raise the money capital, that is through their bonds, and we have discussed in our previous lectures the difference between the shares and the bonds. Then here comes the role of the credit rating agencies. What are the role of the credit rating agencies? Now what is credit rating agencies? Basically जो कंपनी जब अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, सो बॉन्ड्स के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि बॉन्ड्स के पास एक स्पेसिफिक रेटिंग्स हो, कि इस बॉन्ड्स की रेटिंग क्या है, while keeping in mind the risk element involved in the bond. So we will discuss it in a detail. And then analysis of situation having different credit ratings by different credit rating agencies. So now then we will analyze कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, सो वो ऑब्वियसली एक ही होती है, या अच्छी होगी या बुरी होगी. वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. सो जब कंपनी की जब वो बॉन्ड इशू करते हैं जस्ट टू रेज देयर कैपिटल, सो उसकी क्रेडिट रेटिंग भी एक ही होनी चाहिए. लेकिन अगर उसको एक एजेंसी एक रेट देती है, दूसरा एजेंसी दूसरा रेट देती है, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, and that is sort of alarming situation for the companies as well. So in introduction we will study today that who really cares about the firm, कि firm की केयर कौन करता है. Obviously two persons, the stockholders and the lenders or the creditors. Stockholders because the shareholder or the stockholders has invested his money in the firm. So चूंकि उसका पैसा लगा होता है, so that's why he has some care about the firm. Another person is the lender. वो बंदा जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, not through shares but through bonds, कि वो शेयर्स नहीं लेता लेकिन वो बॉन्ड के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करता है. अब वेरी ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड शेयर इज कि बॉन्ड बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ लोन टू द गवर्नमेंट और टू द फर्म इन विच यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी. Whereas stocks जो होते हैं, शेयर्स, this is basically your ownership, कि आपकी ऑनरशिप है, और स्टॉक्स पे आपको जो रिटर्न या डिविडेंड या प्रॉफिट मिलता है वो वेरी करता है. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1% शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के, सो कंपनी के डिविडेंड या प्रॉफिट हर क्वार्टर या हर सेशन में डिफरेंट होता है. सो यू विल गेट योर रिटर्न, योर प्रॉफिट अकॉर्डिंगली. जितने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आपके पास उतना ही रिटर्न या प्रॉफिट आएगा. ऑन द अदर साइड जो बॉन्ड्स होता है, जब आप किसी भी कंपनी के बॉन्ड लेते हैं तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. इट कुड बी 2%, 3%, 5% ऑफ द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी. सो कंपनी चाहे लॉस करती है या प्रॉफिट, लेकिन आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है बॉन्ड्स पे. सो वी विल डिस्कस अबाउट द लेंडर्स एटीट्यूड
toward corporate governance. And we have discussed a lot about the stockholder or the shareholders' attitude toward the corporate governance and how they can monitor the firm activities and other financial matters. अब इस सेशन में we will discuss the importance of lenders, the creditors, and their attitude toward the company's corporate governance. कि किस तरह लेंडर अपना रोल अदा करता है टुवर्ड द कंपनीज गवर्नेंस, बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड, इट कुड बी इंडिविजुअल पर्सन और द इंस्टीट्यूशंस. उसने काफ़ी पैसा लगाया होता है थ्रू बॉन्ड्स इन द कंपनी, सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ राइट कि वो कंपनी की मॉनिटरिंग करें, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्टडी करें, उसको एवेल्युएट करें. There are basically two types of lenders. Basically, we have two types of lenders. The first one is commercial banks, and the other one is individual investors, the bond holders. Commercial banks basically government या किसी भी firm को जब loan देती है, then they become the creditors of that particular firm. And individual investors बेसिकली वो बॉन्ड्स लेते हैं एंड दे गेट देयर रिटर्न आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड्स. सो दोनों केसेस में कमर्शियल बैंक अगर लोन देता है फर्म को, सो वो उनको उनसे एंड में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेते हैं. सो दैट इज हाउ द कमर्शियल बैंक्स वर्क. ऑन द अदर साइड जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, बेसिकली ही और शी also get some return at the maturity of the bond. So commercial bank as lender, almost all banks have commercial lending departments. Then loan loan money to companies to purchase equipment or inventory to start or expand their business. Because कंपनी के पास बेसिकली दो सोर्सेज होती हैं टू कलेक्ट द कैपिटल और टू रेज द मनी फ्रॉम द मार्केट. द फर्स्ट वन इज आइदर द जनरल पब्लिक और द बैंक्स. जनरल पब्लिक से वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर्स कि कंपनी जब इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाती है टू लॉन्च देयर शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन द जनरल पब्लिक. सो इन्वेस्टमेंट बैंक फिर कंपनी के लिए आइदर थ्रू अंडरराइटिंग मेथड और द बेस्ट एफर्ट मेथड वो कंपनी के लिए कैपिटल या फंड रेज करती है. दैट इज वन ऑफ द सोर्सेज के किस तरह कंपनी अपना कैपिटल या फंड रेज करती है. अनदर सोर्स इज ऑब्वियसली सपोज अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, स्टॉक मार्केट इतना एक्टिव नहीं है, सो नॉर्मली वी हैव सीन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज कि डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता टू इन्वेस्ट इन द मार्केट और द फर्म. सो ऑब्वियसली अनदर ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद द फर्म और द कंपनी इज द कमर्शियल बैंक्स. अगर उनको पैसा नहीं मिलता प्रॉपरली फ्रॉम द जनरल मार्केट, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, तो फिर वो बैंक्स के पास जाते हैं और वो बैंक से लोन लेते हैं फॉर टू इंक्रीज देयर बिजनेस और इफ दे वांट टू परचेज एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट और इन्वेंट्री. सो ऑन द अदर साइड अगर वेस्ट में वी हैव सीन if a company is running in the developed country, so obviously उसके पास ये दोनों sources होते हैं. They can get money from the commercial banks as well as they can get money from the general public by issuing the shares or the stocks or the bonds. So one of the main revenue sources for bank is the interest made on loan they lend. So commercial bank का जो one of the main sources of
रनिंग है वो यही है कि वो जितना लोन कंपनीज को देते हैं उसके रिटर्न में वो उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. सो कमर्शियल बैंक की जो मेन एक्टिविटी है दैट इज दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन they lend to the companies. So firm's financial position is taken into account before issuing loans. Now the question is कि कम बैंक जब फर्म को लोन इशू करते हैं सो उससे पहले बैंक उस फर्म या कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके बैलेंस शीट को वो थॉरली चेक करते हैं. बिकॉज सपोज अगर एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, अगर उसकी बैलेंस शीट ठीक नहीं है, उसके डेट्स ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो बैंक को ये पता होता है कि सपोज अगर हमने इनको लोन दे भी दिया सो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल नॉट बी इन द पोजीशन टू गेट बैक देयर लोन टू द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक को ये पता होता है कि पोजीशन इनकी ठीक नहीं है, तो अगर हमने इनको लोन दे भी दिया तो ये उस लोन को रिटर्न करने में इतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे. ऑन द अदर साइड इफ देयर इज अ फर्म कि जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग पोजीशन शो कर रहा है, सो कमर्शियल बैंक के लिए it's very easy for them to decide about whether to lend the loan or not. So obviously अच्छे बैंक्स को या अच्छी कंपनीज को तमाम बैंक्स लोन देते हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनीज नहीं होती उसको बैंक लोन इतनी आसानी से नहीं देता. So individual investors as lenders, bond holders. Individual investors can become creditors of a firm by purchasing that firm's bond. हर एक कंपनी के अपना एक बॉन्ड होता है, सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो बॉन्ड खरीद के उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है एंड कैन बिकम द क्रेडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म. बट द क्वेश्चन इज अगेन कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है इन बॉन्ड्स इन द फर्म, सो फॉर दैट इन्वेस्टमेंट ही और शी मस्ट हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द फर्म फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज द मार्केट. सो अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन लेना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है. लेकिन ऑब्वियसली अगर एक बंदे के पास मिलियंस ऑफ रुपीस या बिलियंस ऑफ रुपीस हैं, सो ऑब्वियसली अगर उसने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में करनी है, सो ऑब्वियसली ही कैन गेट एक्सपर्ट ओपिनियंस फ्रॉम द एनालिस्ट in the stock market and by giving some fees, by giving some charges to them. लेकिन again individual investor को it's a bit riskier for them to invest in the company's bond. So creditors can trade their claims just as shareholders or stockholders. Bond holders also can also sell their bonds to other investors, and banks can also sell their loans to by primarily to other institutions. जिस तरह शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, सेम इज द केस विद द बॉन्ड्स. बॉन्ड्स की भी बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स हैं, सो अगर उसको पैसे की जरूरत है, सो दूसरा बंदा उससे वो बॉन्ड लेके एटलीस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देके 1 लाख रुपए उससे वो बॉन्ड ट्रांसफर कर सकता है अपने नाम पे. फायदा उसको ये होगा कि उसकी मेच्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जो सेकंड बायर है उसको मिल सकता है.
सिमिलरली बैंक्स जो लोन देती हैं, सो अगर बैंक को वाकई अपने पैसों की ज़रूरत है, सो वो अपना लोन दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे बैंक को अपना लोन बेच सकते हैं बाय टेकिंग एटलीस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ले लेते हैं और वो दूसरा बैंक या इंस्टीट्यूशन जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपनी से ले सकते हैं। सो बॉन्ड्स और शेयर्स दोनों की लेन देन, सेलिंग और बाइंग, दैट इज पॉसिबल। If firms suffer from poor corporate governance, then the value of their bonds might decline just like the value of stocks. Suppose जिस तरह कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो डिपेंडेंट होती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे, एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर रीजंस कि जिससे कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है और कम होती है। लेकिन वन ऑफ द मेन फैक्टर्स यू कैन से इज द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। अगर पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, सो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी नीचे आएगी। अगर कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है थ्रू पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को नजर आ रहा है कि पोजीशन ऊपर जा रही है, तो उससे शेयर प्राइस बढ़ सकता है। ऑब्वियसली मेनी रीजंस में ये है कि अगर आपकी कंपनी में बड़े अच्छे डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओज आते हैं, दीज आर बेसिकली द इंटेंजिबल पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस वैल्यू। कि बाकी जितने भी आपके कंपनी में एग्जेक्टिव्स आते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी का नाम बढ़ता है एंड ऑब्वियसली उससे कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है। सिमिलरली अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है, so that will again disturb the bond value in the market. So if a firm collapses from poor corporate governance, then lenders may get back only pennies on the amount of their loan. जिस तरह कंपनी डूबती है और शेयर होल्डर का जो शेयर्स है या जो उनकी वर्थ है कंपनी में वो डूब जाती है, सिमिलरली बॉन्ड्स होल्डर भी एज कंपेयर टू स्टॉक होल्डर्स उनको जरा से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन काफी मिनिमम अमाउंट होती है वो। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इफ द firm collapses from poor corporate governance, then जो lenders होते हैं may get back only pennies in the on the amount of their loan. जो लोन उन्होंने दिया होता है कंपनी, बिकॉज कंपनी के पास पैसा नहीं है। सपोज कंपनी की जो टोटल टर्न आउट है दैट इज 10 लाख रुपीज, जिसमें 5 लाख रुपए के बॉन्ड्स हैं लोगों ने जो इन्वेस्ट किए हैं। let's take the example कि 5 लाख में there are 5 इन्वेस्टर्स जिन्होंने 1-1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और कंपनी की जो टोटल वर्थ वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए रह जाती है बाय सेलिंग ऑल द एसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इंडिविजुअल जो बॉन्ड होल्डर है उसकी जो टोटल लोन थी कंपनी को दैट वाज 1 लाख रुपीज, अभी उसको 10,000 या 5,000 रुपए मिल जाते हैं अगर वो लकी है तो। सो फर्म जब कोलैप्स करते हैं तो लेंडर्स को या बॉन्ड होल्डर्स को दे आर गेटिंग वेरी पेनीज ऑन द अमाउंट ऑफ देयर लोन। Will a bank may find it worthwhile to monitor the firm that they lend to, because millions, even billions could be at stake. Individual bondholders may not have the resources to do so. So banks normally जितना इन्वेस्टमेंट करता है, जितना लोन देता है कंपनीज को, उतना that is not comparable with the investment made by the individual in the bonds.
अगेन आई एम रिपीटिंग कि जितनी लोन बैंक देते, बिकॉज बैंक के पास दे हैव मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज इन देयर डिपॉजिट्स, तो वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं कंपनीज को. सो एंड दे आर इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू एक्चुअली एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. तो जब बैंक किसी भी कंपनी को लाखों या करोड़ों रुपए लोन देगा, तो ऑब्वियसली वो उससे पहले कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको वो उसकी ऑडिट करेगा या उसको एनालाइज करेगा कि वेदर ये कंपनी इस कैपेबल है कि फ्यूचर में हमें अपना लोन वापस कर सकें. सो ऑन द अदर साइड इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतना स्ट्रेंथ नहीं होता to actually go for the financial position of the company. So debt in and of itself could be a governance mechanism. What does it mean? Basically जब आप किसी को debt देते हैं, so that is a sort of a governance mechanism. इसकी simple example ये है, डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में इवन अब्रॉड यूके या यूएस वगैरह में जब आप किसी बैंक जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दे इन्वेस्टिगेट अबाउट यू इज टू चेक योर क्रेडिट हिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूके में हूं, मैं किसी बैंक में जाता हूं, तो ऑब्वियसली मैं जब उस बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगा, तो वो बैंक सबसे पहले मेरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा कि भाई इस बंदे ने इससे पहले किसी से लोन लिया है या नहीं लिया. सो अगर उस बंदे ने पहले किसी से लोन लिया है और इसने वो लोन वापस किया है, सो दैट मीन्स कि ये बंदा एलिजिबल है टू गेट अगेन द लोन. सो बेसिकली किसी को कर्ज देना, ऑब्वियसली आप उसमें कई चीजें देखते हैं. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर मैं किसी बंदे को कर्ज दूंगा या डेट दूंगा, तो ऑब्वियसली मैं कुछ चीजें उसमें चेक करूंगा. द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसकी हिस्ट्री चेक करूंगा. द फर्स्ट वन कि इसकी इतनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि ये बंदा मुझे कल दोबारा अपना कर्जा या जो डेट है वो वापस करें. नंबर वन. नंबर टू, इसने किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं किया. तो अगर उसने फ्रॉड नहीं किया, दैट मीन्स कि वो बंदा इस काबिल है कि मैं उसको लोन या डेट दे सकूं. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स कि जब आप किसी को डेट या कर्जा देते हैं, तो ऑब्वियसली यू गो फॉर सम इंक्वायरीज अबाउट दैट पर्सन. सो एज अ फर्म, सपोज मैं एक फर्म चला रहा हूं, मैं एक कंपनी चला रहा हूं. सो अगर मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए ऑब्वियसली आई विल बी लुकिंग फॉर सम लोन्स, फॉर सम कैपिटल, मे बी फ्रॉम द जनरल पब्लिक और इवन फ्रॉम द बैंक्स. तो जब मैं जनरल पब्लिक में जाऊंगा या मैं कमर्शियल बैंक से अपना लोन के लिए अप्लाई करूंगा, सो फॉर दैट रीजन मुझे अपनी सारी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, किसी किस्म का फ्रॉड मेरी कंपनी में नहीं होना चाहिए. आई हैव टू मेंटेन अ क्लियर क्रेडिट हिस्ट्री. अगर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर होगी तभी मुझे बैंक्स की तरफ से डेट मिलेगा या लोन मिलेगा. सो वी कैन से डेट इन एंड ऑफ इटसेल्फ कुड बी अ गवर्नेंस मैकेनिज्म. सो इसी तरह डेट के टू गेट द डेट और द लोन you must have, as an individual as well as a firm, must have to maintain the clear credit history.
So credit rating agencies, that is government as well as private, all bonds need to be rated to attract the investors and creditors. Credit rating agencies basically है क्या? Credit rating agency assesses the credit worthiness of an individual, corporation or even a country. जिस तरह हमने अभी कहा है कि जिस तरह एक शेयर होल्डर या जो शेयर्स होती हैं उसको जब इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि उसकी बैक पे किसी इन्वेस्टमेंट बैंक का हाथ है या नहीं. सो द शेयर्स बेसिकली सपोर्टेड बाय द इन्वेस्टमेंट बैंक. सेम इज द केस विद द बॉन्ड के बॉन्ड के पास जब तक रेटिंग नहीं होती किसी भी अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की उस वक्त तक उस कंपनी का बॉन्ड नहीं बिकता. स्टॉक एक्सचेंज में नॉर्मली जब इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी का बॉन्ड बाय करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन दे नॉर्मली आस्क कि भाई इसकी रेटिंग क्या है, नंबर 1, और इसके पास किस कंपनी की रेटिंग है. सो दीज टू बेसिक क्वेश्चंस कि रेटिंग क्या है और किस कंपनी की रेटिंग है, दैट इज वेरी नेसेसरी. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि बॉन्ड के लिए जरूरी है कि उसके पास अच्छी रेटिंग हो, उसके पास अच्छी कंपनी की रेटिंग हो to attract the investors and the creditors. So analysts rate stocks and credit rating agency rate bonds for bond investors. जिस तरह हमने अभी कहा है जो एनालिस्ट होते हैं, इवन द बाय साइड एनालिस्ट और द सेल साइड एनालिस्ट, वो जो स्टॉक होता है उसकी रेटिंग करता है कि भाई सिमिलरली जो बॉन्ड होता है उसकी रेटिंग करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. सो क्रेडिट रेटिंग्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. अब डिफरेंट एजेंसीज, इसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज भी होती हैं. अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दैट इज कॉल्ड पैकरा, PACRA, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट में देयर आर न्यूमरस इंडिपेंडेंट और प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो कंपनीज की बॉन्ड्स को रेटिंग करती हैं. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि आप गवर्नमेंट से ही अपनी रेटिंग कराएं. अगर एक प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी है जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत स्ट्रांग है एंड द इन्वेस्टर एज वेल एज द क्रेडिटर्स ट्रस्ट देम कि उन्होंने जो बॉन्ड की रेटिंग की है वो ठीक होगी. So either the government credit rating agency or the private credit rating agencies इसको रेट किस तरह करती है बॉन्ड को? अगेन बाय चेकिंग द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एज वेल एज द करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. इन शॉर्ट, अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, अगर कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं उसकी रेटिंग हाई करेगा. मींस के हाई क्रेडिट रेटिंग का मतलब यह है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, इस कंपनी के बॉन्ड्स को खरीदना, इट्स सेफ एंड नॉट रिस्कियर. So there are different agencies, even the government as well as
प्राइवेट एजेंसीज जो मुख्तलिफ कंपनीज की बॉन्ड्स को रेट करती हैं. सो नाउ इट्स द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बॉन्ड के लिए किस एजेंसी की रेटिंग लेती है, आइदर द गवर्नमेंट और द प्राइवेट. So credit rating agency tells a lender or investor the probability of the subject being able to pay back a loan. रेटिंग का मतलब क्या है, हाई या लो. हाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग करती है, दैट मीन्स कि इस कंपनी की जो बॉन्ड्स हैं उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो उनको लोन दिया है वो आपको विद द इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा. सो इस फैक्टर को, इस जो रिस्क फैक्टर है ऑफ गेटिंग बैक योर मनी, इसकी वो रेटिंग करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. सो अ पुअर क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स a high risk of defaulting on a loan and thus leads to high interest rates. Poor credit rating बॉन्ड को किस वक्त मिलता है, जब एक कंपनी अपना हाई इंटरेस्ट रेट अप्लाई करती है बॉन्ड्स पे, तो ऑब्वियसली उसकी क्रेडिट रेटिंग कम होगी. बिकॉज कि जब एक बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी कहती है एक बॉन्ड पे कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, ऑन द अदर साइड एक दूसरी कंपनी है जो सेम वैल्यू ऑफ बॉन्ड इशू करती है एंड दिस सेज कि हम आपको 5% ऑफ इंटरेस्ट देंगे. सो जो क्रेडिट रेटिंग, जो कंपनी लो इंटरेस्ट इशू कर रहा है उसकी क्रेडिट रेटिंग हाई होगी. दैट मीन्स कि इसमें इतना रिस्क नहीं है. और जो कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट आपको दे रही है सो उसकी क्रेडिट रेटिंग कम होगी, बिकॉज टू गेट द 10% ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मनी उसका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है. सो क्रेडिट रेटिंग is basically has a sort of direct link with the interest rates. So basically credit rating agency analyze the element of risk involved with the bond by having some grades which determine the level of risk associated. So basically a credit rating का मतलब ये है to analyze the risk factor. जितना रिस्क ज्यादा होगा उसकी रेटिंग उतनी कम होगी, जितना रिस्क कम होगा उसकी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा होगी. एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन वेयर द फर्म हैज डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग्स बाय डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. नाउ द क्वेश्चन इज कि सपोज एक कंपनी है तो ऑब्वियसली उसकी एक फाइनेंशियल पोजीशन होगी, या तो स्ट्रांग होगी या वीक होगी. दैट मीन्स कि उसकी जो रेटिंग्स होगी बॉन्ड्स की उसको भी सेम होना चाहिए, या अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए. सो अगर किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स की डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं, सपोज देयर आर 3 डिफरेंट कंपनीज जो एक या देयर आर 3 डिफरेंट एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो एक फर्म की बॉन्ड्स की रेटिंग करती हैं. फॉर एग्जांपल मूडीज, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज, जो दुनिया में टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आती है इंटरनेशनली. फिर उसी फर्म को मूडीज उसकी रेटिंग करता है एंड सिमिलरली फिर एक प्राइवेट कंपनी एजेंसी वो उसकी रेटिंग करती है. सो सपोज
बिकॉज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो एक है, एक फाइनेंशियल पोजीशन पे 3 डिफरेंट रेटिंग्स का क्या मतलब है? सो मूडीज जब रेट करती है उसको, तो फॉर एग्जांपल वो उसको AAA रेटिंग करती है, अच्छी रेटिंग देती है। पैक्रा की जो रेटिंग है, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो उसकी रेटिंग आती है AA। और एक प्राइवेट एजेंसी है, वो उस फर्म को रेट करता है, उसके बॉन्ड्स को A। सो मूडीज सबसे अच्छी रेटिंग दे रहा है, पैक्रा उससे जरा सी कम रेटिंग दे रहा है, एंड जो प्राइवेट एजेंसी है वो उससे भी कम उसको रेटिंग दे रहा है। सो द प्रॉब्लम इज कि कंपनी एक, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक, लेकिन डिफरेंट रेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक आम बंदा, सपोज वो बहुत शरीफ बंदा है, लेकिन या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। सपोज अगर वो अच्छा है लेकिन उसके बारे में 3 बंदे डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, सो दैट मीन्स कि बंदा तो एक है और अच्छा भी है, लेकिन 3 डिफरेंट ओपिनियंस का मतलब यह है कि हर एक बंदे की उस तक जितनी एक्सेस है, जितनी इंफॉर्मेशन है, उसी की बेसिस पे वो अपना डिसीजन बता रहा है। सो सेम इज द केस विद द फर्म एंड द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सो प्राइवेट as well as PACRA must have to evaluate their expertise for credit rating purposes, because Moody's credit rating agency is having international image, and a firm is always a single financial position, which means having same credit ratings if evaluated by different credit rating agencies. अब मूडीज ने अच्छी रेटिंग दी है, पैक्रा ने कम रेटिंग दी है, प्राइवेट एजेंसी ने उसे भी कम दी है। सो प्राइवेट फर्म को ये टेंशन होनी चाहिए कि भाई मेरी रेटिंग पैक्रा से क्यों मैच नहीं कर रही, और वो उसको इसलिए चैलेंज नहीं कर सकता कि पैक्रा के पास दे हैव मोर एक्सपर्टीज, दे हैव मोर क्वालिफाइड एनालिस्ट जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्चुअली एनालाइज कर सकता है। सो प्राइवेट फर्म के पास अगर रेटिंग कम है तो उसको ये चीज एज्यूम करनी चाहिए कि मेरी इतनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है टू गेट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट एजेंसी को अपनी जो एक्सपर्टीज हैं, अपने जो क्वालिफाइड एनालिस्ट हैं, उसको इंप्रूव करना चाहिए ताकि उसकी रेटिंग और पैक्रा की रेटिंग मैच कर सके। सपोज अगर पैक्रा की AA है और प्राइवेट फर्म या एजेंसी की भी AA होती, सो दैट मीन्स कि जो प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसकी जो एक्सपर्टीज हैं, उसकी जो क्वालिफाइड जो एनालिस्ट हैं, दैट इज इक्वल टू द एक्सपर्ट्स एंड क्वालिफाइड एनालिस्ट इन द गवर्नमेंट पैक्रा। सिमिलरली पैक्रा ने जो रेटिंग दी है कंपनी के बॉन्ड को, दैट इज AA, वेयर एज मूडीज ने उसको ज्यादा रेटिंग दी है। सो मूडीज की एक इंटरनेशनल इमेज है, पैक्रा की इतनी इमेज नहीं है। सो इट इज क्वाइट नेचुरल कि पैक्रा एटलीस्ट जो मूडीज की रेटिंग है उसको चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज के पैक्रा के पास हो सकता है इतने एक्सपर्ट्स या इतनी क्वालिफाइड एनालिस्ट ना हो कि उसने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को थॉरली चेक किया हो, तभी उसकी जो रेटिंग है वो मूडीज की जो रेटिंग से डिफर कर रही है। अगर लकीली
फॉर एग्जाम्पल पैकरा और मूडीज की रेटिंग सेम होती, अगर पैकरा ने भी AAA दिया है, हाईएस्ट रेटिंग, और अगर मूडीज जो पैकरा है उसके भी AAA होता और मूडीज का भी AAA, सो दैट मीन्स कि फिर पैकरा को खुश होना चाहिए कि पैकरा के पास इतनी एक्सपर्टीज हैं, इतने जो एनालिस्ट हैं, क्वालिफाइड एनालिस्ट, दैट इज कंपेरेबल, दैट इज इक्वल टू द एनालिस्ट एज वेल एज द एक्सपर्टीज of the Moody's credit rating agency. So another aspect of this figure is कि एक प्राइवेट फर्म को, एक इंडिविजुअल फर्म को फॉर देम अगर, एंड ऑब्वियसली एक और चीज दैट वी विल डिस्कस कि जितनी आपकी एजेंसी की एक्सपर्टीज या रेपुटेशन अच्छा होता है, जितनी आपकी एजेंसी के पास क्वालिफाइड एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और जितनी आपकी अच्छी हिस्ट्री होती है, आप उतना ही फिर फर्म बॉन्ड को चार्ज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ फर्म, एक कंपनी है, वो अपने बॉन्ड के लिए रेटिंग्स लेती है. सो ऑब्वियसली अगर वो किसी लोकल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में जाता है तो वो उससे कम फीस लेंगे, और हो सकता है कम फीस पे उसको अच्छी रेटिंग दे दे वो. सिमिलरली अगर वही कंपनी पैकरा जाती है तो हो सकता है कि वो पैकरा उस कंपनी को प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ज्यादा चार्ज करें. लेकिन अगर आपने मूडीज से क्रेडिट अपनी रेटिंग लेनी है, सो ऑब्वियसली मूडीज आपको एक प्राइवेट एजेंसी और जो पैकरा है उससे कहीं ज्यादा चार्ज करेगा. नाउ देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप सिर्फ फीस की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप फिर एक छोटी सी फर्म की तरफ जाएंगे और मूडीज की तरफ आप नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर चार्जिंग लार्ज फी और कमीशन. लेकिन द नेगेटिव पॉइंट इज कि जब आपके बॉन्ड के पास एक लोकल एजेंसी की रेटिंग होगी तो उस पे एक इन्वेस्टर, एक क्रेडिटर वो ट्रस्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर आपके बॉन्ड के पास मूडीज की रेटिंग हो तो उस पे जो आम इन्वेस्टर है, आम बंदा है, क्रेडिटर है, वो ट्रस्ट करेगा, बिकॉज आपके पास एक मूडीज एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग्स हैं. ऑल्दो आपने फीस ज्यादा दी है, आपने पैसे ज्यादा दिए हैं, लेकिन उस पैसे से आपके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, आपके पास ज्यादा लेंडर्स, इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स आएंगे और आपका बॉन्ड लेंगे, बिकॉज आपके पास यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेटिंग. सो जो अच्छा बिजनेसमैन, जो अच्छी कंपनी होती है, दे ऑलवेज गो फॉर द गुड रेटिंग्स. अच्छी कंपनी के पास वो जाते हैं ताकि वो उनको अच्छी रेटिंग दें. अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस फिगर इज कि अगर आप लोकल एजेंसीज के पास जाते हैं तो हो सकता है वो आपसे जरा सी ज्यादा फीस लेके आपको अच्छी रेटिंग दें. सो दैट मीन्स कि वो रेटिंग जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ कंपैटिबल नहीं है. सो अगेन जो ट्रस्ट का फैक्टर है इन्वॉल्व फ्रॉम द एजेंसी साइड, वो इन्वेस्टर्स के जहन में होता है कि इन्वेस्टर जब किसी कंपनी के बॉन्ड को खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि किस एजेंसी से आपने रेटिंग की है, उसी की बेसिस पे वो आपसे बॉन्ड लेता है. सो जितनी अच्छी एजेंसी की रेटिंग आपके पास होगी उतना ही आपका जो बॉन्ड है वो सेल होगा कैपिटल मार्केट में.
नाउ फ्रॉम पर्सपेक्टिव, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर्सपेक्टिव, firm's perspective, firm must go for those credit rating agencies whose reputation is good, because this will increase their bond value. जिस सर अभी हमने डिस्कस किए कि फर्म को उन एजेंसीज के पास जाना चाहिए टू गेट द रेटिंग के जिनकी अपनी रेपुटेशन ठीक हो. ऑब्वियसली पाकिस्तान में पैकरा का बहुत नाम है, सो बजाय इसके कि आप किसी लोकल एजेंसी की रेटिंग लें तो पैकरा की रेटिंग आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगी. लेकिन अगर सपोज अगर एक ऐसी प्राइवेट एजेंसी भी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसकी बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है और जिसकी बहुत स्ट्रांग रेपुटेशन है मार्केट में, सो ऑब्वियसली उसकी रेटिंग भी आपके बॉन्ड को एक वर्थ देगी, एक वैल्यू देगी. So instead of going for private CRAs for so-called good and cheap ratings, it would be in the firm's best interest to have ratings from reputable CRAs, credit rating agencies. What if they charge more for their services? As we have discussed कि अगर आप सिर्फ पैसे बचाने के लिए एक लोकल एजेंसी से अपनी बॉन्ड्स की रेटिंग करवाते हैं, सो ऑब्वियसली आपके पास तो उसकी रेटिंग आ जाएगी, मे बी वो आपको अच्छी रेटिंग दे, लेकिन यू विल नॉट गेट द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मार्केट. एक आम इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा बिकॉज आपके पास अच्छी फर्म की रेटिंग नहीं है. लेकिन अगर आपके पास अच्छी फर्म की रेटिंग है, इवन देन अगर आपने काफी पैसे दिए हैं, काफी इन्वेस्टमेंट काफी खर्चा किए हैं टू गेट द रेटिंग फॉर योर बॉन्ड, तो वही खर्चा आपका आपके पास नए इन्वेस्टर लेके आएगा, नए क्रेडिटर्स लेके आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो खर्चा हुआ है वो कंपनसेट हो जाएगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन. सो बेसिकली अच्छी फर्म के पास जाना या छोटी फर्म के पास जाना ये कंपनी का डिसीजन होता है, और कंपनी ये एनालाइज करती है कि उसकी पोटेंशियल कितनी है. फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली वो कभी भी मूडीज के पास नहीं जाएंगे, वो कभी भी पैकरा के पास नहीं जाएंगे, बिकॉज फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है. अगर आप पैकरा या मूडीज से अपने लिए रेटिंग लेते हैं अपने बॉन्ड्स की, तो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं होगी. जब आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं होगी, फर्स्ट थिंग इज कि आपके पैसे भी लगे, दूसरा जब रेटिंग ठीक नहीं है तो मार्केट से इन्वेस्टर भी आपके पास नहीं आएगा. ऑन द अदर साइड, इफ यू हैव वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी मार्केट वैल्यू ठीक है कंपनी की, सो फिर आपको अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाने से नहीं डरना चाहिए. आप पैकरा जा सकते हैं, आप मूडीज जा सकते हैं, आप पैकरा जाएंगे, आप मूडीज के पास जाएंगे, सो ऑब्वियसली दे विल गिव यू अ प्रॉपर एंड नाइस हाई क्रेडिट रेटिंग. तो जब आपकी क्रेडिट रेटिंग मार्केट में जाएगी अच्छी, सो आपके पास इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके पास क्रेडिटर्स आएंगे. सो बेसिकली टू गेट द क्रेडिट रेटिंग मीन्स दैट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन. इसमें एजेंसीज का कोई काम नहीं होता कि आपको अच्छा दे रहे हैं या बुरा दे रहे हैं. दैट इज योर कैपेसिटी टू गेट द रेटिंग्स. सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं टीचर्स से कि सर आपने मुझे कम मार्क्स दिए हैं. सो दिस इज व्हाट आई हैव सीन मेनी टाइम्स विद माय स्टूडेंट्स कि सर आपने कम मार्क्स दिए. सो नॉर्मली आई रिप्लाई कि मैंने कम मार्क्स नहीं दिए, आप लोगों ने कम मार्क्स लिए हैं. दैट मीन्स कि आप लोगों ने जैसा पेपर किए वैसा आपको मार्क्स मिल जाते हैं. अगर आप अच्छा पेपर करते हैं यू विल गेट सम गुड मार्क्स. आपने अच्छा पेपर नहीं किया तो ऑब्वियसली आपके नंबर कम हैं.
सो इट्स नॉट माई अथॉरिटी कि मैं आपको नंबर दूं, मैं सिर्फ आपके पेपर को जज कर रहा हूं एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई गिव यू द नंबर्स। अगर आपका पेपर सपोज 10 में से 10 नंबर का है तो मैं आपको 0 नहीं दे सकता, इट्स इम्पॉसिबल। या अगर आपका पेपर 0 का है तो मैं आपको 10 नंबर नहीं दे सकता। तो सेम इज द केस विद द कंपनीज। जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होती है दैट डिटरमिन्स द कंपनीज बॉन्ड रेटिंग्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सिर्फ एक लेबल उनको देते हैं, सिर्फ एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का कोई अमल दखल नहीं होता। सो द समरी of today's lecture is that we discussed that basically there are two persons who cares about the firm, the shareholder as well as the creditors. Then we discussed two types of lenders. The first one is commercial bank and the other one is individual. कि commercial bank भी companies को loan देते हैं and become the lenders, और इंडिविजुअल बंदा कंपनी को ऐसा लोन डायरेक्टली नहीं दे सकता बट वो बॉन्ड लेके कंपनी को पैसे देते हैं एंड बिकम द क्रेडिटर और लेंडर। देन वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट फॉर एवरी बॉन्ड, जिस तरह शेयर्स की वर्थ होती है, वैल्यू होती है, और उसको एक एनालिस्ट एनालाइज करता है, either the buy side or the sell side analyst. Similarly जो bonds होते हैं उसको भी रेटिंग चाहिए होती है and that is normally given by the credit rating agencies. इसमें we have government agencies in Pakistan, especially PACRA, and some private credit rating agencies. So analysis of situation having different credit ratings by different credit rating agencies. कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक है, दैट मीन्स कि उसकी रेटिंग पूरी दुनिया में जहां भी हो वो एक ही होनी चाहिए। लेकिन अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग्स में फ़र्क है, सो दैट मीन्स कि कंपनी में कोई मसला नहीं, मसला क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अपनी जो पोटेंशियल है उसमें है। तो छोटी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को फिक्र होनी चाहिए कि भाई मेरी रेटिंग जो है वो दूसरी अच्छी कंपनी की रेटिंग से मैच नहीं कर रही, सो आई मस्ट हैव टू इंक्रीज माई एक्सपर्टीज, माई जो एनालिस्ट होते हैं, ताकि मेरी रेटिंग उससे मैच कर जाए। एंड दैट वाज द एजेंसीज पर्सपेक्टिव। जो फर्म्स पर्सपेक्टिव इज कि फर्म्स को अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, स्ट्रांग है, तो फिर फर्म्स को डरना नहीं चाहिए कि हो सके कहीं ऐसा ना हो कि पैकरा या मूडीज मुझे अच्छी रेटिंग ना दे। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड रेटिंग फ्रॉम द पैकरा एज वेल एज द मूडीज। ऑल्दो आपको ज्यादा फीस चार्ज करेंगे वो, बिकॉज दे हैव अ वेरी ह्यूज रेपुटेशन इन द मार्केट, लेकिन फिर वही रेटिंग आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न भी लाके देती है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है देन ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दोज एजेंसीज, दोज लोकल नॉन रिप्यूटेबल एजेंसीज कि जो आपको हो सकता है अच्छी रेटिंग तो दे, लेकिन मार्केट से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना दैट वुड नॉट बी possible. So this is the end of today's lecture. Allah Hafiz.